Welcome, Explorer, in your social studies class. Every day is a new chance to learn and grow. So, in this chapter, we are going to study about physical features of India. Chapter number 4, Physical Features of India. बच्चों, what is physical features? Suppose अगर कोई आपसे पूछे कि आपका physical features क्या है? So, when we talk about the physical feature of the body, कि किसी की आंख बड़ी है, छोटी है, नाक पतली है, चौड़ी है, फेस ऐसा है, इसी तरह से जो हमारी कंट्री इंडिया है उसका भी अपना एक फिजिकल फीचर्स है। कहीं पर्वत है, कहीं नदियां हैं, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेट्यूज है। Here what you have to do, identify these physical features and match them with their names. Here you can see pictures are given to you and you have to identify these pictures name. So here we have mountain. So can you see the mountain? Then we have plains यानी कि मैदानी क्षेत्र, desert, रेगिस्तान. Then we have plateau. Plateau क्या होते हैं बच्चों? Hills होती हैं, लेकिन उनका surface जो होता है वो plain होता है, वो flat होता है. I hope you will be easily able to match these pictures with their name. Next we have wow fact. We call India our motherland. बच्चों, हम भारत को क्या बोलते हैं? हम भारत को हमारी भारत माता भी या मातृभूमि भी बोलते हैं. India is a big country with a large population. India is 7th largest and the second most populated country in the world. It is the part of Asia. More than 100 crore people live here. It is also one of the most beautiful countries in the world. बच्चों, इंडिया क्या है? इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और क्या है, इसमें बहुत सारी लोग रहते हैं, बहुत सारी जनसंख्या रहती है. ये 7th लार्जेस्ट और सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. सो हेयर आई हैव करेक्शन. बच्चों, अब इंडिया जो है वो सेकेंड नहीं, अब इंडिया जो है वो फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गई है. द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया, लैंड वेरीज फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस. ठीक है, जो लैंड सरफेस इंडिया का है बच्चों, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वेरी करता है, उसमें अंतर होता है. देयर आर हाई माउंटेन, vast plain, rocky plateaus, dry desert, etc. It has thick forest and many rivers. Very few countries in the world can boast so much variety. बच्चों, जो हमारी कंट्री है इंडिया, वहां क्या है? वहां बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, पहाड़ है, वास्ट प्लेन है, रॉकी प्लेट्यूज है, ड्राई डेजर्ट्स है, एक्सेट्रा है. और हमारे जो भारत के फॉरेस्ट है ना, वो घने हरे भरे पेड़ों से भरे हुए हैं और यहाँ बहुत सारी नदियां भी हैं. बहुत कम ऐसी कंट्रीज है जिनके पास ये सारे फीचर्स हैं. दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया सो यूनिक एंड ब्यूटीफुल. बच्चों, यही एक चीज है जो हमारे भारत को बहुत खूबसूरत और बहुत अलग बनाती है, सबसे अलग बनाती है. Here you can see India map. I hope you all are very aware about this map. So here we have mountain area from north, then we have coastal areas in south, and then we have plateaus in the middle of the map. Now let us discuss about physical features of India one by one. Let's start with the very first from the north side, the Himalayan mountain ranges. Dear learners, when mountains are next to each other, it is said to be ranges like this. Suppose this is one mountain, another. So जब ये mountain एक ही line में ऐसे रहते हैं ना बच्चों, line से, तो इन्हें हम mountain ranges भी बोलते हैं. Mountains are the land part of the earth that rise steeply from the surrounding area. A chain of mountain form a range. Mountain क्या है बच्चों? Mountain are the land parts of the earth और वो बहुत ऊंची ऊंची वो होती है बच्चों, उनकी ऊंची स्लोप होती है. मैम आप कहती है तो मेरे को नर्वसनेस होने लगती है. तो हमारे नॉर्थ साइड में क्या होता है? हमारे नॉर्थ साइड में पर्वत रहते हैं जिनकी ऊंची ऊंची चोटियां रहती हैं, जस्ट लाइक दिस, उनकी पीक्स रहती हैं. और हेयर इट इज गिवन, जब माउंटेन्स एक चेन में होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम रेंज भी बोलते हैं.
The northern part of India has Himalayan mountain ranges. The ranges have some of the highest snow-covered peaks. ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया है बच्चों, वहां क्या है, बहुत ऊंची ऊंचे 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 पर्वत है, पहाड़ है, माउंटेन रेंजेस हैं, और जो ये रेंजेस हैं, दे हैव सम ऑफ द हाईएस्ट स्नो कवर्ड पीक्स. और कुछ कुछ माउंटेन्स पे बहुत सारी स्नो, कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं बच्चों जो स्नो से कवर्ड है, और कुछ माउंटेन्स तो बहुत ज्यादा हाईएस्ट पीक्स भी हैं. उनमें से कौन सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है बच्चों? द हाईएस्ट पीक माउंटेन इज योर माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट पीक का एग्जिस्ट करता है बच्चों, और ये पार्ट है आपका हिमालयन रेंज का. द माउंटेन रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड. माउंटेन जो रीजन होता है ना बच्चों, जहां पर्वत होंगे, जहां स्नो होंगे, जहां बर्फ होंगे, तो बट ऑब्वियस है कि वहां का एरिया हमेशा क्या होगा, हमेशा कोल्ड रहेगा. Its most parts always remain covered with snow. The melting snow give rise to big rivers like Ganga, Yamuna, Brahmaputra and Indus. बच्चों, जो पर्वत है, जो पहाड़ है, वो हमेशा स्नो से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है, और वही जब बर्फ जो है वो पिघलती है, तो वो किसका शेप ले लेती है? वो शेप ले लेती है नदियों का. सो भारत में बच्चों बहुत सारी नदियां हैं. Here mention in your textbook is Ganga, Yamuna, Brahmaputra and Indus. As they flow down to the plains, several smaller rivers join the main rivers. Because of severe cold, nothing grows on upper snow-covered slopes. As we move down to the lower slopes, we find thick forests. This is called terai region. ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब जो रिवर्स है, जो ऊपर से मेल्ट होके नीचे आती है, तो वो और भी रिवर्स से और भी नदियों से जाके उनका मेल हो जाता है, उनका संगम हो जाता है. यहाँ बच्चों इतनी ज्यादा ठंडक है, इतना ज्यादा कोल्ड है, इसी वजह से यहाँ उतने ज्यादा प्लांट्स नहीं ग्रो किए जा सकते. यहाँ बहुत लेस प्लांटेशंस होता है, और इसी रीजन को बच्चों हम तेरई रीजन भी बोलते हैं. Here you can see a beautiful picture is presented to you. Here we have the north side of India, and here you can see these are your area जहां बच्चों माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं. सो पहला फिजिकल फीचर्स क्या है? पहला फिजिकल फीचर्स है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स विच एग्जिस्ट इन द नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया. Here you can see so many ranges and landscapes are given to you. Here we have Karakoram, then we have Great Himalaya ranges, then we have Shivalik. Here in this picture it is very clearly shown to you. नेक्स्ट बारी आती है बच्चों सेकेंड फिजिकल फीचर्स की, तो वो है आपका द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि मैदानी क्षेत्र. द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज. दीज प्लेन्स आर फ्लैट लैंड वाटर्ड बाय हिमालयन रीजन्स. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गैंगेटिक प्लेन. अब जो नॉर्दर्न प्लेन क्या है बच्चों, इट लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज. अब जो ये प्लेन्स है, ये कैसे है? ये फ्लैट है, मैदानी एरिया है, जहां जो नदी ऊपर से आती है ना, माउंटेन से नीचे आती है ना, वो यहाँ जाके इसी जमीन को बहुत ही ज्यादा फर्टाइल बना देती है. बहुत सारी रिवर्स जैसे कि गंगा, द यमुना फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स. दिस मेक्स the land fertile and the more suitable for cultivation. Just because of this बच्चों, जो ऊपर से नदियां आती हैं नॉर्थ से हमारे नॉर्दर्न प्लेन पे, वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन को बहुत ही ज्यादा फर्टाइल, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ बना देती है. Because of the fertile and the supply of water, the region is thickly populated. Many well-known cities and towns are located along the bank of river Ganga and Yamuna, and the plains are very hot in summer and cold in winter. बच्चों, just because of these fertile land, क्या होता है इसमें वाटर प्रॉपर सप्लाई हो पाता है, प्लेन है, वहां अच्छे से प्लांटेशन की ग्रोथ हो पाती है, इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन जो है वो मोस्ट फर्टाइल लैंड कहा जाता है. द प्लेन्स आर very hot in summer and cold in winter. Then we have the Thar desert. बच्चों अब हम पढ़ेंगे वो एरिया जिसे हम कहते हैं रेगिस्तान. ठीक है, so here in the map you can see the brown area which is highlighted. It is your desert area. The area of a land covered with sand is called the Thar desert. The northwestern part of India, especially the state of Rajasthan, is covered by a sandy area known as Thar and the Great Indian Desert. This region receive very little rainfall. और इस रीजन में बच्चों बहुत कम बारिश होती है, तभी ये रेगिस्तान है, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होगी बच्चों तो प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे. जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स तभी ग्रो करते हैं जहां बारिश होती है. द क्लाइमेट
Here is dry and hot in summer and cold in winter. यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है बच्चों? समर में बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, गर्मी में बहुत ही ज्यादा गर्म क्लाइमेट होता है, बहुत ही ज्यादा सूखा रहता है, और ठंडी में क्लाइमेट कोल्ड रहता है. Very few plants and trees grows here, as we have already discussed, कि जहां बच्चों कम पानी रहेगा, जहां कम इरिगेशन होगा, वहां प्लांट्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम रहेगी. लाइफ इन द डेजर्ट इज डिफिकल्ट. बच्चों रेगिस्तान पे रहने वाले लोगों की जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है. दैट इज वाई डेजर्ट रीजन इज नॉट थिकली पॉपुलेटेड. इसीलिए वहां बहुत कम जनसंख्या में लोग रहते हैं. देन वी हैव द वाव फैक्ट. The Indian camel has a single hump, but the Bactrian camel has a double hump. So here we have two types of camel. One, we have single hump camel, and then we have two hump camel, that is known as Bactrian camel. और camel को बच्चों ship of desert भी कहते हैं. Camel is commonly used in the desert for transport. बच्चों ट्रांसपोर्ट के लिए, अब रेगिस्तान है तो वहां कोई भी व्हीकल्स जो है वो चल नहीं पाती है, क्योंकि सैंड होता है, तो किसी भी व्हीकल्स का पहिया वहां आसानी से नहीं मूव कर पाता है. इसीलिए वहां मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वहां कौन है? ऊंट है, आपका कैमल है. सो इट कैन बियर द हीट ऑफ द ब्राइट सन. बिसाइड इट कैन लिव विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फॉर मेनी डेज. और इसे हम क्या बोलते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं. Here you can see the picture, camel in the Thar desert, which is in which city? It is in your Rajasthan state. Then we have the third physical features बच्चों. पहला हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा नॉर्दर्न माउंटेन, जहां हमने नॉर्थ के माउंटेन्स के बारे में डिस्कस किया. फिर हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स, जहां हमने मैदानी क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया. अब बच्चों हम पढ़ते हैं द डेक्कन प्लेट्यू. अब हम प्लेट्यू एरिया के बारे में पढ़ते हैं. सो हियर यू कैन सी इन द पिक्चर विच इज हाईलाइटेड विद द पिंक कलर. सो ये है बच्चों आपका प्लेट्यू रीजन. ठीक है, द डेक्कन प्लेट्यू एंड द घाट्स. A plateau is a flat top region raised above the surrounding land. बच्चों देखिए, 3 मेजर लैंडफॉर्म होते हैं. एक आपका माउंटेन है, एक आपका प्लेन है, और इनके बीच में जो इनके मिडिल ऑफ आता है वो आपका प्लेट्यू है. माउंटेन क्या होता है बच्चों? माउंटेन मतलब पर्वत जो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और उनकी पीक्स होती है और उनका ऐसे स्लोपी स्ट्रक्चर होता है. प्लेन्स हमें पता ही है, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, जो प्लेन होते हैं, एकदम फ्लैट होते हैं. देन वी हैव प्लेट्यू. प्लेट्यू क्या होते हैं? वो हिली एरियाज होते हैं, लेकिन उनका टॉप जो है वो माउंटेन जैसा नहीं रहता, उनकी पीक नहीं होती है. उनका जो टॉप होता है, सपोज दिस इज हिल, उनका टॉप जो है वो फ्लैट होता है. द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया is called southern plateau और the Deccan plateau. जो southern part है इंडिया का उसे हम southern plateau और Deccan plateau भी कहते हैं. The southern plateau looks like a cone in shape. southern plateau कैसा लगता है बच्चों? Here you can see, ये आइसक्रीम के कोन जैसे लग रहा है ना, जो पिक्चर में हाईलाइटेड है पिंक कलर से. So it is also known as peninsula. A peninsula is a piece of land that jutting into the sea and surrounded by large water bodies on its three sides. बच्चों पेनिनसुला उस जगह को कहते हैं जो 3 साइड से किससे घिरा रहता है? 3 साइड से पानी से घिरा रहता है. आप मैप में देखिए, ये साइड भी वाटर है, दिस साइड यू हैव वाटर एंड दिस साइड यू हैव वाटर. बट इसका ठीक ही उल्टा होता है बच्चों आइलैंड. आइलैंड क्या होता है? वो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है. दैट वी विल डिस्कस फर्दर इन दिस चैप्टर. The Indian peninsula has the Bay of Bengal to its east, the Arabian Sea to its west, and the Indian Ocean to its south. So these are the water boundaries which covered our peninsula. Most rivers are rain-fed. Since the plateau slopes from west to east, river in this region flow from west to east. ठीक है, प्लेट्यू का स्लोप बच्चों किस डायरेक्शन में है? वेस्ट टू ईस्ट है. सो जो नदियां भी आती हैं तो उनका डायरेक्शन भी वेस्ट टू ईस्ट हो जाता है. द रिवर्स लाइक कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी flow into Bay of Bengal. Only the Narmada and the Tapi flow into Arabian Sea. ठीक है, which rivers flow into Bay of Bengal? Here you can see the highlighted point is Bay of Bengal. So कौन कौन सी नदियां हैं जो Bay of Bengal में जाके मिल जाती हैं? वो है बच्चों कृष्णा, कावेरी, गोदावरी. एंड अनदर वन नर्मदा एंड तापी, वो कहाँ जाके मिलती है बच्चों? वो जाके अरेबियन सी में मिलती हैं. दिस रीजन इज वेरी रिच इन मिनरल. और जो ये रीजन है ना, ये बहुत ही ज्यादा मिनरल्स में रिच है. यहाँ बहुत ही ज्यादा ढेरों मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं. सम पार्ट ऑफ द प्लेट्यू आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. कुछ हिस्से ऐसे हैं प्लेट्यू के जो घने जंगल से, घने पेड़ों से कवर्ड है बच्चों.
This region has a moderate climate. ये रीजन मॉडरेट क्लाइमेट में रहता है बच्चों, बिटवीन क्लाइमेट इसका रहता है, ना ज्यादा ठंड रहती है और ना ज्यादा गर्म रहती है. The region is surrounded by hill ranges on all three sides. The land is hard and rocky. This land is less fertile than the plains. To the east of the Deccan Plateau are mountains called Eastern Ghats, and to the west of the Deccan Plateau are mountains that are known as Western Ghats, and these mountains are not so high are those of Himalayan range. Okay. Next, also we have mountains in this plateau region. So to the east, we have Deccan Plateau and they are known as Eastern Ghat. And to the west of the Deccan Plateau, there are mountains जिनको हम Western Ghats कहते हैं. There are narrow strips of plain along the east and the coast of India. Here you can see in the map, let me show you. ये आप देख सकते हो बच्चों, ये जो लाइनिंग गई है, ये जो आउटलाइन बाउंड्री है, जहां बच्चों सी और हमारा लैंड मीट करता है, तो उस प्लेस को हम कोस्टल एरिया कहते हैं. Then we have island. A piece of land, एक ऐसी piece of land जो चारों तरफ बच्चों पानी से कवर्ड हो, घिरी हुई हो, उसे हम island कहते हैं. There are two groups of island in our country. बच्चों हमारी कंट्री में कितने island exist करते हैं? So we have two group of island very famous. The one is in the Arabian Sea, it is your Lakshadweep, and the another one is Andaman and Nicobar Island. And the southernmost part of the India is the Nicobar Island, जिसे हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं. You have read that the land surface is not same throughout the India. बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि जो land surface है वो हर जगह इक्वल नहीं है, कहीं प्लेन है, कहीं पहाड़ है, तो कहीं प्लेट्यू है. So in the same way the climate is also different. बच्चों जिस तरह से फिजिकल फीचर्स अलग अलग है ना, डिफरेंट है, इसी तरह से जो क्लाइमेट है इंडिया का वो भी डिफर करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन. The mountain have a cold climate almost throughout the year. In the northern plains, the summers are very hot while the winter are cold. Northern plains में बच्चों समर जब गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और जब ठंडी होती है तो बहुत ज्यादा ठंड होती है. डेजर्ट में क्लाइमेट कैसा रहता है बच्चों? क्लाइमेट ड्राई रहता है. कोस्टल एरियाज में ना ज्यादा ठंड होती है और ना ज्यादा गर्म होती है. That's all about this very interesting chapter. So you have to learn all the physical features of India. Now let's go through glossary of the chapter. We have island. So island is a place which is covered. All four sides is covered with water. We have plateau. It is a flat land on a hill. Then we have coastline, a line that borders the entire coast. That's all about this chapter. Revise the chapter properly. Being an Indian, so it is your responsibility to know all about your country. And I'll be seeing you in another social studies class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.